Yes, sir. Ji, sir. Okay. So Yes, now sir. mute everyone. Please mute yourself. At the end of the lecture, I'll be inviting questions. So then you can ask questions towards the end of the lecture. So the topic or the theme of this lecture is environmental consciousness, and this topic is very very important to all of us because everybody is talking about nowadays about the environmental pollution. So environment means all the surroundings, all around us. There is all sort of pollution in air, in water, in soil, in all the components of the ecosystem of Earth. Now, this pollution, apart from studying in the subject of environmental studies or in environmental science and engineering or environmental management, why this subject is important to us and why the Honorable Supreme Court of India has made the learning of this subject, environmental studies, in at the school level, in college, in higher education, because they want the educated people to be aware of these issues. What are the environmental issues? What is environmental pollution? How it is affecting our life? How it is affecting our health? All these relevant issues are to be known to the educated society. And once we know about it, then we can do something to solve this problem, to get rid of this pollution and the negative effect it is having on our health. So I know that many of you belong to different branches. Not only all of you are not from engineering background. Some are from science background. Some are from social science background. Some are humanities background. Some are from commerce background, etc. So I will be try to be as simple in my presentation as possible in very simple language, and I'll try to be bilingual as well. I'll try to speak both in English as well as in Hindi, so that all of you may be able to understand what I want to tell to you. Secondly, this topic is very, very important as well as interesting. So I hope you'll find this presentation also interesting. And as I had told you at the end, you can ask questions also. So, what is the definition of pollution? It is shown here. Any type of impurities, any type of deleterious substance that may be present or is coming from some other human activity or otherwise into the environment ecosystem components, it is defined as the environmental pollution. And when this pollution takes place, it affects the ecosystem components quality. For example, it affects water quality, it affects air quality, it affects soil quality and other components. So indirectly or directly causes interference, causes damage to human beings and the environment. Now, what are the direct effects of the environment? First, we will discuss the effects of the pollution on biosphere. Biosphere is the land area of the earth where all the living beings live. These may be human beings, maybe animals, and also the plants. Plants are also living beings because they also undergo the process of respiration as we do. So the main effects of pollution are on the entire biosphere. We are more concerned about the human health because we, the human beings, are affected by this all-round pollution. Its concentration is increasing by the day, and it causes damage to our health by these specific pollutants or chemical substances which may be present in air, in food, in water, and other places. Then pollution also causes damage to the natural environment. Obviously, the vegetation, the animals, the crops, and it also causes damage to the visual quality, the capability of human beings to see. Suppose you're driving a car and how much distance of the road is visible to you at a given point of time. If there is more pollution, it affects the visibility of the visual quality of the air. And there are certain
micropollutants, or what we call as the emerging pollutants. What is the meaning of emerging pollutants? The pollutants that didn't existed a few years or maybe 1 or 2 decades back, but now they are present everywhere. What are the meaning of micropollutants? The size of the pollutants is very, very small, micro size, 10 raised to the power of -6. So that is very small size. And those size we cannot even see with the naked eye. So we require very highly advanced uh, instruments to appreciate and to find out the micro quantities of these pollutants. So these most of these micro pollutants and emerging pollutants are also known carcinogens. Carcinogens का मतलब है एक कोई भी ऐसा पदार्थ या सब्सटेंस या पोल्यूटेंट जो कि इंसानों में कैंसर कॉज करने के लिए जिम्मेदार पाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी हैं और फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आज इमर्जिंग पॉल्यूटेंट्स एक बहुत हॉट टॉपिक इस वक्त डिस्कशन का है। So we'll start with the discussing with the issues related to the water, because all of us know that water is the basic human requirement, and it is something that we cannot think of surviving for more than a few days. And it is both the responsibility as well as the fundamental right of every individual to get access to clean, hygienic water. And no doubt it is the responsibility of the government and the government agencies to provide this safe, hygienic water to every citizen of the country. But at the same time, it is our responsibility as well as the global citizens, not only the citizens of this country, but as the global citizens, to protect and conserve water for ourselves as well as for our future generations. Because all of us know, you must have studied in school that 3/4 of the globe or the earth is covered with water. And this water is not fresh water. Most of it is either in the ocean or in the sea. It is saline water. खारा पानी होता है समुद्र का, और इसको हम डायरेक्टली जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। आप बहुत सारे पर्पसेस के लिए अपने यूज करते हैं पानी को। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए हम उसको पीते हैं, और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कहलाता है पोर्टेबल यूज ऑफ वाटर। उसके अलावा घर में बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, हाथ मुंह धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, किचन में बर्तन धोने के लिए, और लॉन में पानी देने के लिए, अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल धोने के लिए। सो दीज आर कॉल्ड द डोमेस्टिक यूजेस ऑफ वाटर. Similarly, the use of water in the institutions as well as in the agricultural sector for irrigation and in the industries. So we defined water quality as a relative parameter. Means that we have to purify water to a level for the specific purpose for which it is being used. तो वाटर क्वालिटी एक रिलेटिव पैरामीटर है, जितने जिस काम के लिए पानी को यूज करना है उतने ही उसको हम क्लीन करेंगे, क्योंकि इसकी कीमत होती है, इसकी कॉस्ट होती है। द मोर यू क्लीन इट, द मोर प्रिस्टीन यू मेक इट, द मोर इज द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द वाटर. So as engineers, our aim is to provide the engineering solution, and providing the engineering solution to a problem should be at the economical cost, the minimum possible cost. That is the aim. So the basic issues with the surface and groundwater, that is the two basic sources of fresh water on earth, या तो नदी का या तालाब का पानी, ये कहलाता है सरफेस वाटर, और जमीन के नीचे जो पानी अवेलेबल है इसको कहते हैं ग्राउंड वाटर. इसमें यहाँ पर तीन प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इश्यूज दिए हुए हैं. एक तो है पैथोजेनिक या बैक्टीरियोलॉजिकल पोल्यूशन, सेकेंड इज सेलेनिटी, जो हम खारेपन की बात अभी कर रहे थे, एंड द थर्ड इज टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि जहरीला है, टॉक्सिक है, इंसानों में नुकसान पहुंचा सकता है, हैजार्डस है, या हो सकता है कि ऐसा कार्सिनोजेनिक भी होते हैं बहुत से कंपाउंड्स. तो ये जो मैंने माइक्रो पॉल्यूटेंट्स और इमर्जिंग पॉल्यूटेंट्स या इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स की बात की,
वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर, और कुछ चीजें मैं ऐसी आपको बताऊंगा ड्यूरिंग दिस लेक्चर की जो आपको इसके बारे में पहले पता नहीं हो। तो अगर हम सरफेस वाटर की बात करें, आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे सारे सरफेस वाटर सोर्सेज हाईली पोल्यूटेड। किसी भी नदी पे चले जाइए आप, इफ आई टॉक अबाउट द टू मेजर rivers of this northern India, that is Ganga and Yamuna. So this Ganga, Yamuna, or what we call in the English as the Ganges, these are not only the lifelines of this northern part of the country, but they are also having their religious reverence. People uh, follow the rivers and they consider the rivers to be as their mother or their goddess, and they want them to be clean. But we, the human beings, are the ones who are responsible for making them impure, making them dirty, and adding all sorts of pollutants, not only from domestic and municipal wastewater, but dumping industrial wastewater, sometimes without treatment. So this has played havoc with the river water quality and pond water quality. And what we see in the big cities, if you go to any ghat of, say, Ganga River, you go to any big city, for example, in Banaras or in Allahabad or at some other place, after Haridwar, Har Ki Paidi, you'll find the river water quality has been highly deteriorated and has been converted from bad to worse. So there are techniques, there are engineered systems which can be used or which are being used to treat this river water in a water treatment plant and make it pure, or rather improve its water quality. But this system of say treatment is a complex system, and our aim should be to desist from in purifying the river or adding pollutants to it without treatment. Because in the industries also, or in the domestic wastewater sector, the municipal wastewater sector, we first say treat the wastewater itself in a wastewater treatment plant before it is being fed to or being discharged in the river water or in the land area. Because if we do it, then all the problems of pollution of water, polluting water starts. For example, if you talk about surface water, the river water, one problem here shown is eutrophication. यूट्रिफिकेशन में ऐसा वेस्ट वाटर हम पानी में डाल रहे हैं, या कहीं से न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स आकर नदी के पानी में, तालाब के पानी में मिल रहे हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस आप सब जानते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स में, खेतों में मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाने के लिए, ये प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस बेसिक से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स किसान ऐड करते हैं, अपने खेतों में डालते हैं। कुछ डायरेक्टली पाउडर के फॉर्म में छिड़क देते हैं, कुछ पानी के साथ या सॉल्वेंट्स के साथ मिला के उसका छिड़काव करते हैं, स्प्रे से। जैसे नाइट्रोजन के लिए यूरिया, आपने नाम सुना होगा, और फास्फोरस के लिए डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जिसके इनडिस्क्रिमिनेट इस्तेमाल ने, अंधाधुंध इस्तेमाल ने हमारी सॉइल में इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है ओवर द ईयर्स। ये एक दिन में नहीं हुआ, सालों में हुआ है। और बिना ये सोचे समझे कि बिना मिट्टी को टेस्ट कराए कि कितनी उसमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, उसको ऐड किया जाता रहा है और जा रहा है। बिकॉज द फार्मर्स don't have the awareness or the knowledge in most of the cases, and this information is not passed on to them, that if you indiscriminately use the chemical fertilizers and pesticides, it will play havoc with the environment. No doubt it will increase your agriculture yield, but excess use of these chemicals will play a negative effect on the environment and produce negative effects rather than positive. तो एक बार जब यूट्रोफिकेशन हो जाता है नदी के पानी में, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो कई प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे बहुत ज्यादा एल्गल ग्रोथ होती है। एल्गी इज द ब्लू ग्रीन एल्गी, आपने सुना होगा, काई उसकी सरफेस के ऊपर हो जाती है डेवलप। और जंगली
पौधे उगाते हैं जिसको कहते हैं हम वीड्स। जैसे हम नाम बता सकते हैं, वाटर हाइसिंथ का नाम सुना होगा आपने, जलकुंभी जिसको कहते हैं हिंदी में। So all sorts of weeds and algae grow on the water surface, and this pond water or lake water, river water becomes stagnant. It is not say capable to be used to be supplied to a city for potable purposes. It cannot be even used for recreational purposes like fishing or boating, etc. So this is one problem. The second problem is when we discharge large quantity of organic waste with the wastewater in a river water or a pond or lake, it results in oxygen depletion. जैसे हर जिंदा चीज को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसी तरह जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं जैसे मछलियां हैं, उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है, जिसे हम कहते हैं घुलनशील ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं। और जो केमिस्ट्री के लोग हैं वो समझते हैं इसको, ये डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है पानी में, ये बड़ी मुश्किल से होती है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो पानी और हवा की सतह पर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिफ्यूजन के जरिए अंदर एंटर होती है। और ये डेफिसिट पर भी डिपेंड करता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल से जितनी कम होगी उतनी तेजी से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो पानी में जाएगी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इट इज अ पुअरली सॉल्युबल गैस इन वाटर। इसका सैचुरेशन कंसेंट्रेशन 9 से 12-13 मिलीग्राम्स 1 लीटर पानी में होता है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि सैचुरेशन कंसेंट्रेशन बहुत कम है, पुअरली सॉल्युबल है, और दूसरी तरफ हम ऑर्गेनिक वेस्ट डाल रहे हैं। तो जब एक नाले का पानी आके नदी के पानी में गिरता है या तालाब में, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है पहले से मौजूद, तो पानी में मौजूद एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, वो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज या बायोडिग्रेड करके एनवायरमेंट फ्रेंडली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इस प्रोसेस में पानी में मौजूद डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जितना ऑर्गेनिक लोड आएगा वेस्ट वाटर के साथ गिरेगा नदी के पानी में, जितने नंबर ऑफ इंसिडेंसेस ड्रेन गिरेंगे, उतना ही ज्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका जो क्रिटिकल लेवल हम मानते हैं वो 4 से शुरुआत होती है। 3 to 4 मिलीग्राम्स पर लीटर से कम अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में हो जाए तो उसके बाद एक्वेटिक लाइफ के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन 1 मिलीग्राम पर लीटर तक हो गई, या कभी कभी 0 मिलीग्राम्स पर लीटर भी होती है। और ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी एक्वेटिक लाइफ को जिंदा नहीं देख सकते। आप देखते हैं, आप पहुंचते हैं नदी के किनारे, देखते हैं कि मछलियों की डेड बॉडीज, मरी हुई मछलियां जो है वो नदी के पानी पर सतह पर तैरती हुई आपको नजर आती हैं। तो जब आप ऐसी सिचुएशन देखें तो आप समझ जाएं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 0 है और इसमें कोई भी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं। इसका मतलब नदी का पानी हाईली पोल्यूटेड है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन उसमें हो चुका है और उसकी इकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। जहां तक ग्राउंड वाटर का सवाल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, सरफेस वाटर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, इसको हम साफ कर भी रहे हैं और साफ करके शहरों में सप्लाई करते हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड वाटर को हम एक ऐसी नेचुरल सोर्स समझते हैं जो कि न सिर्फ हमारे पास मौजूद रहा है और इसका इस्तेमाल बिना ये सोचे कि इसमें कोई पोल्यूशन हो सकता है या इसमें कोई किसी किस्म का प्रदूषण हो सकता है, हम इस्तेमाल करते रहे। जब से इंसानों ने सिविलाइजेशन बना करके रहना शुरू किया, तब से पानी की जरूरत महसूस हुई है। और ग्राउंड वाटर, गांव में लोग पहले कुआं खोदते थे और 25-30 फीट पे वाटर टेबल होती थी, पानी निकल आता था, तो बहुत आसानी से उस पानी को इस्तेमाल कर लेते थे। उसके बाद पानी को ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। अब खेतों में सिंचाई के लिए भी ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाने लगा, और घरों में जहाँ वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है वहां पर भी जेट पंप लगा के या सबमर्सिबल पंप लगा के पानी निकालने लगे। एक तरफ हम ज्यादा निकालने लगे, पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। दूसरी तरफ ह्यूमन पॉपुलेशन का विकास, डेवलपमेंट बहुत होने लगा शहरों में।
बड़े बड़े घर बनाए जाने लगे लोगों को घर मुहैया कराने के लिए, कंक्रीट के जंगल्स बन गए, सड़कें बन गई, पेवमेंट्स बन गए, तो ओपन स्पेसेस नहीं बची जहां से बारिश का पानी दोबारा से रिप्लेनिश होकर। ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? जो बारिश होती है, नेचुरल प्रेसिपिटेशन होता है, वहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल एक छलनी का काम करती है, नेचुरल सीव का, और ड्रॉप बाय ड्रॉप ये इन्फिल्ट्रेट और परकोलेट होके जमीन के नीचे जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं उसमें इकट्ठा हो जाता है। इसको हम एक्वीफर्स, एक्वीक्लूड्स, एक्वीटार्ड्स वगैरह में क्लासिफाई करते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो पानी का रिप्लेनिशमेंट कम हो गया, आप निकाल ज्यादा रहे हैं और वापस कम जा रहा है, इसकी वजह से वाटर टेबल तेजी से घटने लगी। और शहरों में और छोटे शहरों में, टाउन एरियाज में भी, अब इवन विलेजेस में ये वाटर टेबल तेजी से नीचे जा रही है। इसके बारे में वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, हर साल आंकड़े पेश करते हैं कि बाय व्हाट लेवल्स दिस वाटर टेबल इज गोइंग डाउन, and there is an alarming trend. According to the latest statistics released by the Ministry of Water Resources last year, in the year 2022, this year data has not been released so far. They have declared several zones of the country the dark zone. तो वाटर टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से डार्क जोन वो क्षेत्र है जहां पर वाटर टेबल इतनी नीचे जा चुकी है ऑलरेडी, और इसका मजीद नीचे जाने का खतरा है कि किसी भी, हो सकता है फ्यूचर में, भविष्य में किसी भी नॉन पंप से या मैकेनिकल मीन से हम इस पानी को निकालना संभव ना हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ हमारी नदियां, हमारे तालाब हाईली पोल्यूटेड है, दूसरी तरफ हमारा ग्राउंड वाटर भी अब जो है वो बहुत कम होता जा रहा है इस वाटर टेबल के नीचे जाने की वजह से। और दूसरा, जो कुछ पानी अवेलेबल है भी, उसमें ये माइक्रो पॉल्यूटेंट्स या इमर्जिंग पॉल्यूटेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है ग्राउंड वाटर की, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, आर्सेनिक वगैरह। इसके अलावा जो माइक्रो पॉल्यूटेंट्स की बात हम कर रहे हैं वो भी हम जिक्र यहाँ पर अभी कर चुके हैं। एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? Waste water is nothing but 99% water, and there are 1% impurities which causes pollution. So there are solids. In the solids there are carbohydrates, that is organic compounds, proteins and fats. That is a part of our food. When we wash our utensils after cooking of food, these say compounds, they go in the wastewater. So these are referred to as the organic material. Then I had talked about the nutrients, specifically nitrogen and phosphorus. Then I had talked about microorganisms. Now these microorganisms, specifically what I was talking about, pathogens. तो पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जो इंसानों में अगर पानी में मौजूद हैं या उस पानी को हमने पी लिया, कंज्यूम कर लिया, तो इंसानों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्टेड डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे कॉलरा है, टाइफॉइड है, एमीबिक डिसेंट्री है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, ये सब इन्फेक्टेड पानी को पीने से होते हैं। और कह रहे हैं कि 1 मिलीलीटर वेस्ट वाटर में तकरीबन 10 मिलियन, तो 1 मिलियन का मतलब 1 लाख और 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, तो 1 ml वेस्ट वाटर में लगभग 1 करोड़ पैथोजेंस मौजूद होते हैं। तो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पाइपलाइंस कहीं कहीं ओपन ड्रेन से भी पास हो रही होती है। पहले आप देखते थे जीआई पाइप्स का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक का पाइप्स यूज हो रहे हैं। तो जीआई पाइप से मान लीजिए कोरोजन हो गया, रस्टिंग हो गया, और एक छोटा सा होल खुल गया, छेद हो गया, एक ड्रॉप भी वेस्ट वाटर का अगर किसी तरह से चला जाए या कहीं से लीकेज हो जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लाखों पैथोजेंस जो है इस पानी में पहुंच जाते हैं। और फिर जब इस इन्फेक्टेड पानी को अगर हम पी लें, हमारे शरीर में पहुंच जाए, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, तो ये जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं कॉज करते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड you can see the various parameters for national water quality monitoring program. ये राष्ट्रीय स्तर पर पानी को, क्वालिटी को जांचने के लिए एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाया गया है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और उसके अंतर्गत काम करने वाली संस्थाएं जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, सीपीसीबी, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, उनके साइंटिस्ट इंजीनियर्स ने मिलके ये पैरामीटर डिजाइन किए। इसमें नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, जो कि नागपुर में है मौजूद, वहाँ के इंजीनियर्स की भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन है। इसमें आप देख रहे हैं 9 कोर पैरामीटर्स हैं, 19 जनरल पैरामीटर्स हैं, 7 फील्ड ऑब्जर्वेशन हैं, 3 बायो मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हैं, और 9 ट्रेस मेटल्स और 7 पेस्टिसाइड्स। तो ये देखिए मतलब क्या चीज करना चाहिए, माइक ऑन रह गया है। मैंने देखा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसका माइक ऑन है? अच्छा, अरे भाई म्यूट कर दिया। Somebody's mic is on, please mute yourself. इंटरनेट पे मैंने बताया सोच लेंदा कोई Please mute जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र। कहाँ से करना पड़ेगा मुझे? यहाँ बगल में रूम है, उसके स्कॉलर लिखा हुआ है। हाँ कोई नहीं। जितेंद्र सर साहब प्लीज म्यूट कराएं। डॉक्टर जितेंद्र प्लीज म्यूट। प्लीज जितेंद्र जी। क्या नेट चालू हो गया उसका? ठीक है। अच्छा, और जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसका क्या प्रोसीजर है सर? आई रिक्वेस्ट somebody who is coming, please mute yourself. यहाँ डिपार्टमेंट से इशू। हाँ जितेंद्र जी, हम उनका फोटो जितेंद्र जी अपना माइक म्यूट कीजिए। जितेंद्र जी माइक म्यूट कर लीजिए। अरे जितेंद्र जी सुनेंगे तब ना माइक बंद करेंगे। अरे जितेंद्र जी प्लीज माइक म्यूट करिए। हेलो हेलो, हाँ हो गया, थैंक यू। प्लीज म्यूट जितेंद्र जी। काफी सारी चीजें बन गई। हाँ, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो जो मैं आपको ट्रेस मेटल्स की बात बता रहा था, ये अब हमारे इमर्जिंग पॉल्यूटेंट्स हमारे ग्राउंड वाटर में मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर ये ट्रेस मेटल्स के नाम दिए हुए हैं, आर्सेनिक, निकल, कॉपर, मरकरी, क्रोमियम वगैरह वगैरह। अब ये सवाल ये ट्रेस मेटल्स या हैवी मेटल्स ये ग्राउंड वाटर में जो कि हम कह रहे हैं कि पहले नहीं थे, आज से 10-20 वर्ष पहले, और अब ये मौजूद हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? अब से 3 साल पहले एक स्टडी की थी जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंडेड थी, और इसमें यूपी के 82 डिस्ट्रिक्ट्स की ग्राउंड वाटर मैपिंग की गई थी, और उसमें इन माइक्रो पॉल्यूटेंट्स की क्वांटिटी जांची गई थी। तो 47 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें अलीगढ़ भी शामिल है, उसमें इन ट्रेस मेटल्स की, हैवी मेटल्स की मात्रा पाई गई थी। एंड दिस इज वेरी डेंजरस और अलार्मिंग ट्रेंड, एंड आई वांट टू टेल यू दैट द कंसंट्रेशन ऑफ दीस ट्रेस मेटल्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री एक सोर्स हो सकता है, जैसे अलीगढ़ को आप सब जानते हैं ताला उद्योग के लिए मशहूर है, तो ताले और चाबी पर चमक देने के लिए हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, निकल प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग वगैरह वगैरह। तो इस प्लेटिंग के दौरान जो है वो ये हैवी मेटल्स जो है वेस्ट वाटर का हिस्सा बनते हैं और फिर एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो बड़ी इंडस्ट्रीज में जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है, वहाँ पर इनको पहले रिकवरी होती है, इनकी रिकवरी ऑफ हैवी मेटल्स। इससे 2 फायदे होते हैं। तो ये कॉस्टली मेटल्स जो हैं वो वेस्ट नहीं होते, इसको हम रिकवर कर लेते हैं और दोबारा से इस्तेमाल हो जाता है, और दूसरा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन समस्या है छोटी इंडस्ट्रीज में, कॉटेज इंडस्ट्रीज। साउथ इंडिया में अगर आप जाएं, जैसे केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, वहां पर हम देखते हैं कि छोटी इंडस्ट्रीज वाले भी अलग अपने यहाँ सेपरेट नहीं लगा पाते, तो वो मिल करके जैसे 4 या 6, 10 इंडस्ट्री मिलकर एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बना लेते हैं और बिना ट्रीट किए वेस्ट वाटर को एनवायरनमेंट में डिस्पोज नहीं करते। लेकिन नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम है। जैसे अलीगढ़ की हमने बात की, हमने खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ कई बार अलीगढ़ में विजिट किया है। जैसे आप जो अलीगढ़ के लोग हैं वो जानते हैं इन एरियाज के बारे में। शाहजमाल हुआ, जयगंज है, अपर फोर्ट एरिया, हर घर में एक छोटी लॉग इंडस्ट्री चल रही है और एक छोटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ मौजूद रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसको बाथ में जो लेस्ड विद हैवी मेटल्स, इसको जो है या तो नाली में बहा देते हैं वो डायरेक्टली बिना कोई ट्रीटमेंट किए, या इससे भी एक स्टेज आगे बढ़ के वो लोग जो शैलो हैंडपंप के लिए बोरिंग करते हैं ना, जैसे उस टाइप की बोरिंग करके
25-30 फीट की बोरिंग की, उसमें ग्राउंड में डाल दिया ऐसे, ताकि बाहर भी नाली में जाएगा तो कोई पता चलेगा, कोई चेक कर लेगा तो फाइन हो जाएगा, तो डायरेक्ट ग्राउंड में डाल देते ताकि पकड़ में ना आए। तो ये मैं बता दूं आपको, ये क्रिमिनल एक्ट है, और प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के हिसाब से पहले बार पकड़े जाने पर इसमें 5,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। सेकंड टाइम पकड़े जाने पर 50,000 जुर्माना और 1 साल की जेल, इंडस्ट्री सील, और मैक्सिमम पनिशमेंट 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि कानून तो सब बने हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कानून का ग्राउंड पर हो नहीं पा रहा, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस। इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं लोग, या because of some other reasons they are conniving with the people who are doing this due to corruption or some other reason. I don't want to discuss on that point, but the reasons are well known to you. The apathy of our system towards these aspects of pollution is playing havoc with the human life. इसके अलावा देखिए, पेस्टिसाइड्स की भी हम बात कर रहे हैं। जो मैंने कहा अभी, खेतों में खरपतवार जो होता है, वीड्स होते हैं, उनको मारने के लिए किसान डालते हैं वीडीसाइड्स, और जो इंसेक्ट्स हो जाते हैं उनको मारने के लिए डालते हैं इंसेक्टिसाइड्स। तो ये एक जनरल टर्म हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड, जिसमें ये नाम दिए हुए हैं यहाँ पर: BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डाईएल्ड्रिन कार्बामेट, एल्ड्रिन एंडोसल्फान, और DDT यानी कि डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये सब डेंजरस पेस्टिसाइड्स हैं। इसका कंसेंट्रेशन भी अब सॉइल में काफी बढ़ चुका है, काफी मौजूद है। अगर हम इस वाटर पोल्यूशन को के अलग अलग कंपोनेंट्स की एग्जांपल्स की बात करें, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स दिए हुए यहाँ पे: एल्कलीज, एसिड्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अमोनिया, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा। हैवी मेटल्स की अभी हमने बात कर ली है। डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी कि पैथोजेंस को मारने के लिए। तो अगर पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं तो ये ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स बन जाते हैं, जैसे ट्राईहेलोमीथेन्स हैं, या जो है दूसरे क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हार्मफुल होते हैं हमारे। ये देखिए कि फोटोग्राफ है। आई हैव माई सेल्फ टेकन दिस फोटोग्राफ इन केरला अबाउट मे बी 3-4 years बैक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बैक वाटर्स हैं केरला के, प्रोबेबली LFP डिस्ट्रिक्ट में लिया है मैंने। और यहाँ देख रहे हैं कोकोनट के पेड़ भी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ सॉलिड वेस्ट डंप साइट है। अब होता क्या है, जब बारिश होती है, बारिश के पानी इस सॉलिड वेस्ट डंप साइट में जाता है अंदर, और इस सॉलिड वेस्ट में बहुत सारे किस्म के हैवी मेटल्स, बहुत सारे किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो इस रेन वाटर के साथ मिक्स होके, लीच करके इस पूरे बैक वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। सो इन दिस वे the pollution starts and spreads from one place to another place in the environment. So I wanted to show you this real-time picture, how the pollution is taking place. These are the 4 basic classification parts of the pollutants that present water pollution: inorganic, organic, heavy metals, and pathogens. So some specific industries which are responsible for causing organic pollution. ऑर्गेनिक पोल्यूशन, जैसे कि जिसमें ऑर्गेनिक लोड ज्यादा हो, जिसमें हम कह रहे हैं जिसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लीट होती है वाटर बॉडीज में। एक इंडस्ट्री आपको बताई हुई डिस्टिलरी। वाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, जहां पर हम फ्रूट जूस को, या जो शुगर इंडस्ट्री में हमें शीरा मिलता है जिसको मोलासेस बोलते हैं, उसके फर्मेंटेशन के जरिए जो वाइन, बियर और दूसरी किस्म की अल्कोहल बनाई जाती है, वो डिस्टिलरी कहलाती है। इसकी वेस्ट वाटर में काफी ज्यादा ऑर्गेनिक लोड होता है। इसी तरह शुगर इंडस्ट्री है, कैनिंग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ये सब ऑर्गेनिक पोल्यूशन कॉज करने के लिए जिम्मेदार है। इनऑर्गेनिक पोल्यूशन का जहां तक सवाल है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, रबर एंड लेटेक्स इंडस्ट्री है। तो यहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स वाटर बॉडी में जाते हैं, जिसमें एक यूट्रोफिकेशन भी एक इफेक्ट होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। हैवी मेटल्स के बारे में बताया आपको, एक तो बता दिया मेटल प्लेटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज हैं
कागज उद्योग जहाँ पर पेपर और कार्डबोर्ड बनाया जाता है, टैनरीज यानी कि चमड़ा उद्योग जहाँ पर एनिमल स्किन्स को प्रोसेस करके चमड़ा बनाया जाता है, लेदर बनाया जाता है, कपड़ा उद्योग जहाँ पर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग होती है, और कोक ओवन इंडस्ट्री. सो these different types of heavy metals whose names are given here: mercury, chromium, iron, nickel, etc. There are various diseases, serious diseases which are caused in human beings because all these chemicals, all these compounds, they are highly toxic. यहाँ पर एक मीनामाटा डिजीज का एग्जाम्पल शो किया हुआ है. जापान में ये मीनामाटा डिजीज हुई थी when there was the exposure of the island, people living in an island who were exposed to these heavy metals which were released from some source, and the people, especially the small children, were affected by this disease. पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स का जहां तक सवाल है, इसके लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिम्मेदार हैं, जैसे सीवेज इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल वेस्ट, मेडिकल लैब्स हैं, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. तो देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं. जैसे कॉलरा है, मैंने बताया था, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, वाइब्रो कॉलरी, तो वो जिम्मेदार है. टाइफॉइड के लिए सैल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी ए एंड बी. डिसेंट्री अमीबा इसके लिए जिम्मेदार है. और गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, और बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं. देन देयर कैन बी सर्टेन वायरस एंड प्रोटोजोआ आल्सो which are responsible for causing these diseases in human beings. तो हमने शुरुआत वहीं से की थी, वहां पर वापस आ गए कि पृथ्वी पर 3/4 जो है वो पानी से कवर्ड है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि पानी की कमी है, पानी का क्राइसिस है. क्यों? क्योंकि इस 3/4 में से 97% समुद्री पानी है. जो खारा पानी है, इसको हम डायरेक्टली किसी भी ह्यूमन पर्पस के लिए, पीने के लिए या दूसरे इस्तेमाल में नहीं ले सकते. उसके अलावा बाकी जो 2% है वो बर्फ के फॉर्म में ग्लेशियर्स में और आइस कैप्स में जमा हुआ है. तो सारा पानी जो पृथ्वी पर मौजूद है उसका सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है, जो कि नदी, तालाब और ग्राउंड वाटर है. और उसके बारे में हम बात कर चुके कि जो नदी, तालाब और ग्राउंड वाटर का पानी है जो बचा हुआ 1% है, उसकी क्या स्थिति है. तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर में क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या किस पानी को हम पीने के लिए सेफ मानेंगे, सही मानेंगे, हाइजीनिक मानेंगे. सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं होना चाहिए. अगर एक ऑर्गेनिज्म भी पैथोजन मौजूद होगा तो ये उस पानी को पीने से हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. देखने में क्लियर हो, बिल्कुल साफ होना चाहिए पानी, ना उसमें कोई कलर हो, ना उसमें कोई टेस्ट हो, और ना ही उसमें कोई ओडर हो, कोई स्मेल भी नहीं आनी चाहिए. खाना खारा पानी सर नहीं एक मिनट, एक जो ये ब्लैक पानी जो पी रहे हैं लोग, सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो ब्लैक पानी जो बड़े बड़े क्रिकेटर वगैरह पीते हैं, मैं आपसे उसमें तो रिक्वेस्ट कलर करूंगा रहता है. कि लेक्चर के एंड में मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगा, तब आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, या आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं. आई विल लेट यू आस्क क्वेश्चन एट द एंड. ओके ओके सर. Okay. So the water should be free from compounds that may have any type of adverse effect on the human health. कोई भी ऐसा कंपाउंड ना हो जिसके ह्यूमन स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े, और कोई ऐसा केमिकल ना हो जो, अगर हम आयरन या गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप को इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, तो उसका कोरोजन ना कॉज करे. So these are the properties, the qualities of safe drinking water. तो पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं: फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स एंड बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स. अभी मैंने ग्राउंड वाटर की जब बात की थी तो कुछ प्रॉब्लम्स ग्राउंड वाटर से रिलेटेड बताई थी, जिसमें नाइट्रेट एक है. तो नाइट्रेट की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ग्राउंड वाटर में 45 मिलीग्राम पर लीटर है. 1 लीटर में 45 मिलीग्राम, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है. और ज्यादा नाइट्रेट अगर है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स में होती हैं. जैसे कि एक छोटे बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि अगर नाइट्रेट पॉइजनिंग उनको हो जाए, जो बच्चे जो हैं वो
मिल्क पाउडर से मिल्क बनाकर पी रहे हैं, उसमें पानी का इस्तेमाल में नाइट्रेट ज्यादा है, ये ग्राउंड वाटर में ही होता है। तो गांव में लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है कि हमारे ग्राउंड वाटर में या इवन जो इंडिया मार्क 2 हैंडपंप लगा हुआ है उसमें जो है नाइट्रेट्स बहुत ज्यादा मौजूद है। तो बच्चे की स्किन जो है वो नीले कलर की पड़ जाती है, एंड इन सीवियर केसेस द चाइल्ड डेथ कैन आल्सो टेक प्लेस। इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मीथेमोग्लोबिनीमिया। सो दिस इज ड्यू टू द हाई नाइट्रेट पॉइजनिंग इन इन्फेंट्स, इन स्मॉल चिल्ड्रन। इसका सोर्स जो है वो ह्यूमंस भी है, एंथ्रोपोजेनिक जिसको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर से, खाद से, एनिमल डंग से, नाइट्रोजनस मटेरियल, केमिकल फर्टिलाइजर से, और सीवेज पोल्यूशन से भी हो सकता है। दूसरा पैरामीटर जो कंसर्न का है ग्राउंड वाटर में वो है फ्लोराइड। अब फ्लोराइड के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक नेसेसरी इविल है। नेसेसरी इविल का मतलब ये है कि एक मात्रा में पानी में इसकी मौजूदगी हमारे शरीर की हड्डियों की और दांतों की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर तक एक्सेप्टेबल लिमिट है, और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 1.5 यानी कि 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। इससे ज्यादा अगर फ्लोराइड होगा तो ये फायदे के बजाय फिर नुकसान पहुंचाने लगता है। तो सबसे पहले दांतों में प्रॉब्लम आती है, दांत इसकी वजह से पीले पड़ने लगते हैं, फिर ब्राउन, फिर ब्लैक, और दांत टूट के गिरने लगते हैं, इसको बोलते हैं मॉटलिंग ऑफ टीथ। उसके बाद जो हमारी शरीर की हड्डियां हैं, खासतौर से हमारे हाथ और पैर की जो बोन्स है वो टेढ़ी होने लगती हैं और इंसान इसमें अपंग हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्केलेटल फ्लोरोसिस। तो इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अब समस्या वही है कि गांव में लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। वो समझते हैं कि साहब कोई देवी प्रकोप है, तो उसके बारे में पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, मजार पे चादर चढ़ाते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक बार अगर इंसान अपंग हो गया, स्केलेटल फ्लोरोसिस को हो गया ज्यादा फ्लोराइड का पानी पीते रहने की वजह से, तो किसी भी दवा से, किसी भी सर्जरी से या ऑपरेशन से उसको आप ठीक नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें जो है वो सावधानी ही बचाव है। अगर आप फ्लोराइड को कम कर दें किसी तरह पानी में, और ऐसा पानी पिए जिसमें फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट यानी कि 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, शिकोहाबाद है, और उसके अलावा बिहार में मोतिहारी है, दरभंगा है। वहां पर फ्लोराइड कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है, और इसकी वजह से ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। और इसका सोल्यूशन भी बहुत आसान है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी ने नागपुर में एक नालगोंडा प्रोसेस किट डेवलप किया है, जहां पर पानी में मौजूद एक्सेस फ्लोराइड को बहुत आसानी से घटाया जा सकता है। इसको हैंडपंप पर भी लगा सकते हैं या नॉर्मल टैप पर, अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो उस किट के थ्रू जो होते हुए पानी निकलेगा और जो फ्लोराइड को कम कर देगा। So it is a very low cost kit now available with the village panchayat, and the pollution control boards are also distributing free of cost. ये देखिए यहाँ पर स्लाइड में दिखाया हुआ है, you can see this dental fluorosis where the teeth of a lady has been affected, and the lower slide you can see skeletal fluorosis where the lady has been made ineffective or handicapped due to this disease. आर्सेनिक भी एक प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर में, और कभी कभी आर्सेनिक नेचुरल होता है ग्राउंड वाटर में, यानी कि जो एक्वीफर में पानी के चारों तरफ नेचुरल रॉक्स होती हैं, उन रॉक्स में आर्सेनिक पहले से ही मौजूद होता है, और जब ये पानी इकट्ठा हो जाता है जमीन के नीचे तो रॉक से लीच करके ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है। इसके अलावा जो मेन सोर्सेज इसके हैं वो आर्सेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है वहां से। और अगर हम ह्यूमन बीइंग्स पर इसके असर की बात करें, सो द इफेक्ट्स आर वेरी वेरी सीरियस। स्किन के ऊपर या खाल के ऊपर चकत्ते पड़ने शुरू होते हैं, फिर जख्म हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिकल लेजन्स, मांसपेशियों में कमजोरी आना, पैरों में लकवा मार जाना, पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्स, और मेडिकल लिटरेचर में स्किन का और लंग का कैंसर भी रिपोर्ट किया गया है ज्यादा आर्सेनिक वाले पानी को
इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कम है, 0.05 milligrams in 1 liter of water. So if the arsenic is more than 0.05 milligrams per liter, it can cause all these diseases which are shown here. Again, arsenic को भी बहुत आसानी से रिमूव किया जा सकता है. WHO has been providing the low cost arsenic remove kits as well. 47 रुपीज कॉस्ट है इसकी. और इसको जो है बहुत सारी एनजीओ भी, सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं जो है वो विलेज लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे यूपी में बलिया डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कुछ ब्लॉक्स में, और बिहार में 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर सहरसा है, मुंगेर है, वहाँ पर जो है ये आर्सेनिक कुछ ब्लॉक्स में पाया जाता है. तो आसानी से रिमूव किया जा सकता है. तो ज़रूरत है अवेयरनेस क्रिएट करने की, और जब ये किट्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो फिर उस क्षेत्र में मौजूद ग्रामीण लोगों से या प्राइमरी हेल्थ सेंटर से डेटा भी इकट्ठा करते हैं कि किट लगाने के बाद फिर इस प्रॉब्लम में, समस्या में कमी आई कि नहीं आई. तो बताते हैं कि साहब हाँ, समस्या में, प्रॉब्लम में कमी आई, एंड पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज, द प्रॉब्लम्स एंड these केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर. हैवी मेटल्स का हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं. अब इनको इन टोटलिटी में जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में इनको रखा है. परसिस्टेंट का मतलब जो एक जगह कहीं पर अगर आ जाए तो वहां पर फिर जाए ना, वहां से, वहां पर उसकी मौजूदगी हमेशा रहे. ऑर्गेनिक का मतलब जो कि नेचर में ऑर्गेनिक हो, और पॉल्यूटेंट का मतलब प्रदूषक, कोई भी किस्म का पोल्यूशन जो एनवायरनमेंट में कर रहा. तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये वो केमिकल सब्सटेंस या पदार्थ हैं जो कि टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं, पर्यावरण में एक बार अगर आ जाए तो लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, और फूड चेन या फूड वेब के जरिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट हो जाते हैं और बायोक्यूमुलेट होते रहते हैं. और इनका लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबल है, पानी के जरिए या हवा के जरिए. ये अपनी ओरिजिन सोर्स से बहुत दूर भी ये जा करके पहुंच सकते हैं. So you can consider these persistent organic pollutants, or what we call as the POPs. They are found almost everywhere and in all ecosystem components. खाने में, मिट्टी में, हवा में, पानी में, हर जगह ये POPs मौजूद हैं. कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में भी मौजूद है. हमारे शरीर में इनका कंसंट्रेशन भी अच्छा खासा बढ़ रहा है. और इससे ज्यादा क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैमल्स में, जिसमें इंसान भी शामिल है, ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल है, माँ से पैदा होने वाले बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू, पैदाइश से पहले और पैदा होने के बाद मदर से ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी ये डेडली केमिकल्स जो हैं वो इन्फेंट में या न्यूली बॉर्न बेबी में पास हो रहे हैं. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई चीज, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर ये केमिकल्स ना हो. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम कर चुके हैं. टॉक्सिक हैं, जहरीले, परसिस्टेंट है, मौजूद रहते हैं, बायोक्यूमुलेटिव, एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में इनका मैग्निफिकेशन बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से इफेक्ट भी बढ़ता जाता है. जहां तक इससे होने वाले नुकसानात का सवाल है, हैजार्ड्स, हमारे शरीर के जितने भी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर से लड़ने की, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, एबिलिटी टू कॉज कैंसर, और जो हमारे शरीर के हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स. यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के जितने इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं सब पे जो है वो बुरा असर डाल रहे हैं या डालते हैं ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, और ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स भी हैं, कैंसर कॉजिंग भी हैं. तो साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने जो स्टडी की है वो बताते हैं कि कैंसर का प्रिवलेंस अब सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है. आपने चारों तरफ देखें, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में, किसी न किसी को आप सुन लेंगे कि कैंसर की बीमारी हो गई. और ये कैंसर एक ऐसी डेडली डिजीज है जिसका जितना फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है उतना ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और सोशल इम्पैक्ट है.
फाइनेंशियल इम्पैक्ट, यानी कि जब मरीज को बीमारी कई मरतबा डायग्नोज नहीं हो पाती टाइम से और सेकंड और थर्ड स्टेज में पहुंच जाती है, तब डायग्नोज होती है, उससे कोई फायदा नहीं होता। जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफिकल्ट है डायग्नोसिस के बाद भी। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के जरिए पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि कैंसरस सेल्स के अलावा जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं और पेशेंट्स बहुत तकलीफ से गुजरता है। फाइनेंशियली भी बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स और उसकी फैमिली पूरी इफेक्ट हो जाती है। और कई बार ये देखा गया है कि कई बार सर्जरी, साल साल भर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी कराने के बाद भी, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी व्यक्ति बच नहीं पाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो कैंसर, आप सब जानते हैं, कैंसर अगर हम एक लेमन टर्म में बात करें, हमारे शरीर में टिश्यूज होते हैं जो सेल से मिलकर बनते हैं, कोशिकाएं, और एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि पुराने सेल्स मर जाते हैं और नए सेल्स उनकी जगह लेते हैं। तो नए सेल्स की फॉर्मेशन का सिलसिला चलता रहता है जब से व्यक्ति पैदा होता है उसकी मृत्यु तक। किसी वजह से अगर ये न्यू सेल्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाए, proliferation of the formation of new cells which can result in the formation of a growth। अब ये ग्रोथ डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं बिनाइन ग्रोथ भी होती है जो कि कैंसरस नहीं होती। तो उस बिनाइन ग्रोथ में तो आप सर्जरी के जरिए उस फोड़े को या उस ग्रोथ को हटा देते हैं, लेकिन अगर ग्रोथ मैलिग्नेंट है या कैंसर है तो उसको हटाने के बाद भी उस सेल्स जो है मल्टीप्लाई होने से रुकते नहीं है। तो बहुत डिफिकल्ट ट्रीटमेंट है। और बहुत, अब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने, इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई है दुनिया में और कहा गया है कि साहब 2 बेसिक रीजंस है कैंसर का प्रेवलेंस बढ़ने के लिए। एक तो ये पॉल्यूशन चारों तरफ, जो पानी में, हवा में, मिट्टी में, हर जगह। अब जो खाने पीने की चीजें उगाई जा रही हैं वो किस में उग रही हैं? मिट्टी में उग रही हैं, चाहे दालें हो, दलहन हो, तिलहन हो, सब्जी है, फल है, सब मिट्टी में। तो मिट्टी में अगर ये केमिकल्स मौजूद है तो वो हमारे खाने की चीजों में भी आ रहे हैं, फिर हम उसको खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे शरीर में जा रहे हैं, फूड चेन में जा रहे हैं, एंड देयर कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। जितने ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे देश के बारे में कहा गया है अनफॉर्चुनेटली कि 2050 तक जो है वो भारत जो है दुनिया का कैंसर कैपिटल बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स विल बी इन इंडिया। और इस बीमारी में समस्या है कि शरीर के हर पार्ट में होती है, कहीं भी हो सकती है, ब्लड से लेकर के टिश्यूज, बोन मैरो, हड्डी, स्किन, in all part of the human body cancer is possible. So it is the concern of the medical community as well as the government of India to work together to find out ways and means to control this disease, and the control can only be possible if we cut down the disease at the source. सोच से अगर हम रोकेंगे तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि पोल्यूशन को अगर हम कम कर दें, जो कि आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। दूसरा, एक चीज और है हमारे यहाँ एडिशनल, हमारे देश में, जो दूसरे देशों में नहीं है समस्या, वो है मिलावट, एडल्ट्रेशन ऑफ ऑल फूड स्टफ आइटम्स। कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, मसाले, हल्दी, दालें, इवन दूध, यहाँ तक कि लाइफ सेविंग ड्रग्स भी जो है वो उसमें मिलावट है और उसमें जो है वो एडल्ट्रेशन। तो ये 2 चीजें जो है वो कैंसर को बढ़ावा दे रही है हमारे देश में, जिसकी वजह से बढ़ रहा है। और देखिए ये WHO ने ये 12 जहरीले पदार्थों को आइडेंटिफाई किया है, डर्टी डजन जिसको नाम दिया गया है। इसमें 8 पेस्टिसाइड्स हैं, 2 इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एंड हेक्साक्लोरोबेंजीन, और 2 केमिकल बाई प्रोडक्ट्स हैं, डाइऑक्सीज एंड फ्लोरेंस। अब समस्या ये है कि जैसे अगर हम DDT की बात करें तो अगर आप डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको जब इसका आविष्कार किया गया USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो इसको वंडर केमिकल कहा गया। वंडर केमिकल क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल सबसे पहले खेतों में ही शुरुआत हुई कीड़ों को मारने के लिए, और इससे जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया है। फिर इसका इस्तेमाल किया गया इंसेक्ट्स को मारने के लिए, जिससे कि मलेरिया जैसी बीमारियों पर रोकथाम पाया गया। और लास्ट में इसको फिर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एज ए केमिकल वेपन भी इस्तेमाल करने के बारे में सोचा गया। तो इसके एनवायरनमेंट पर होने वाले नुकसान की वजह से
सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1952 में इस पे बैन लगा दिया। भारत में भी 1972 में इस पे बैन लगाया जा चुका है, लेकिन आज भी आप चले जाएं शहर में या भी इवन गांव में किसी भी छोटी बीज या खाद की दुकान पर बिकता हुआ आपको आसानी से न सिर्फ मिल जाएगा बल्कि इस्तेमाल भी होता है, मिल जाएगा। सो दिस शोज द एपैथी ऑफ आवर सिस्टम towards the exposure of the human population with these chemicals, and the effects are all for all of us to see. इसका नतीजा जो है हमारे सबके सामने है। जैसे ये डायोक्सीज इन फ्यूरेंस की बात अगर हो रही है, आप देखते हैं कि हम लोग घर में कूड़ा झाड़ू देते हैं, कूड़ा जो है वो बाहर फेंक देते हैं। नगर निगम वाले आते हैं, उसको सड़क पे झाड़ू देते हैं, चौराहे पे इकट्ठा करके उस पर आग लगा देते हैं। तो ये जलाना सॉलिड वेस्ट को सबसे वर्स्ट तरीका है, सबसे बुरा तरीका है सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना। बिकॉज व्हेन यू बर्न सॉलिड वेस्ट, स्पेशली इफ इट हैज प्लास्टिक मटेरियल इन इट, इट इज हैविंग say polythene bags in it. So these deadly chemicals like dioxins and furans, they go into the air, and when we breathe, these chemicals go into our lungs, our respiratory system, causing all sorts of disease. तो ये अगर आप किसी को देखें जलाते हुए तो उसको रोकें कि भाई ये सॉलिड वेस्ट को जलाइए मत, ये सबसे गलत तरीका है। ये इससे जो है बहुत एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है। So these chemical characteristics of these persistent organic pollutants we already discussed. I'll skip this. ये dioxins and furans की मैं बात कर रहा था। तो प्रोडक्शन में ये आ रहे हैं पेस्टिसाइड्स के प्रोडक्शन के दौरान और क्लोरीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस से। हॉस्पिटल वेस्ट और कुछ हजार्डस वेस्ट को हम एक मशीन के जरिए डिस्पोज ऑफ करते हैं, जिसको बोलते हैं इंसिनरेटर। हर बड़े हॉस्पिटल के साथ एक इंसिनरेटर होता है, क्योंकि हॉस्पिटल वेस्ट में कुछ डेडली वायरस और बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं, जो कि अगर आप ओपनली एनवायरनमेंट में फेंक दें तो उससे इंसानों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इंसिनरेटर में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हम सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं, जिसमें बहुत कम एयर पोल्यूशन भी कॉज होता है और ये डिस्पोज होकर इनऑक्शियस कर दिया जाता है। वहां से भी अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट न किया जाए तो डायोक्सिन्स एंड फ्यूरेंस आते हैं। और लकड़ी, कोयला वगैरह, जो पत्थर का कोयला होता है, उसकी कंबशन से भी आता है। देन बर्निंग ऑफ द प्लास्टिक्स इज अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि जो 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात हुई अभी, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डर्टी डजन बोला है, ये हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट सिस्टम्स पे वैसे तो सभी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक दो केमिकल्स को आइडेंटिफाई किया गया। एक तो डीडीटी है और दूसरा है पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। दीज आर द most deadly of these 12. Now the transportation of POPs takes place in the environment. It goes into the air, it goes into the water, from one place to another place. Sometimes it requires medium, sometimes it doesn't even require medium, so it is easily transported. Now wastewater is a very important parameter if we want to control or protect the water from getting polluted. We have to know the characteristics of wastewater, because first we treat the wastewater in a wastewater treatment plant, and then we put it in a river. Then finally, when we have to send it for water distribution to a big city, it is to be cleaned again one more time. तो इसको बोलते हैं 2-stage strategy, जो पानी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम ये पता लगा सकें कि वेस्ट वाटर में पोल्यूशन का लेवल कितना ज्यादा है। तो ये सब पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हम ये काम करते हैं, जैसे पीएच, अल्कैलिनिटी, बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी का मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा मैं इसकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ये यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि वेस्ट वाटर को कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगा के हम कितना पोल्यूटेड है ये जानते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए इसको कितना हमें ट्रीट करना है। ये वो बायो एक्यूमुलेशन का स्लाइड है जिसकी बात हमने अभी की थी, कि जब एक डेडली केमिकल एनवायरनमेंट में किसी सिस्टम में आता है,
मान लीजिए तालाब या नदी की पानी में डिस्चार्ज हो गया, तो वहां से फिर जो एल्गी होता है या जू प्लैंकटन, उसमें इसका कंसेंट्रेशन मान लीजिए 0.04 पार्ट्स पर मिलियन या मिलीग्राम पर लीटर है। अब इस जू प्लैंकटन को जब छोटी मछली कंज्यूम करेगी तो कंसेंट्रेशन तकरीबन 10 गुना या 12 गुना बढ़ के 0.04 ppm से 0.5 ppm हो जाएगा। फिर इस छोटी मछली को एक बड़ी मछली खाएगी तो 4 गुना बढ़ के 2 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। फिर इसको चिड़िया वगैरह खाएंगी तो 25 ppm। So in this way, the concentration is increasing from one species to another species, and as the concentration is increasing, the effects is also are visible and are being caused. वाटर क्वालिटी की हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि डिजॉल्व ऑक्सीजन एक पैरामीटर है जो पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर पानी में 8 से 9 मिलीग्राम पर लीटर या ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन है 20 डिग्री पर, तो इस पानी को हम गुड वाटर की, अच्छी पानी की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो बहुत ज्यादा ग्रेवली पोल्यूटेड, तो कह रहे हैं इसके नीचे फिर मछलियां या एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी, मरने लगेगी। इन दिस स्लाइड वी हैव ट्राइड टू शो द बीओडी इफेक्ट्स ऑफ वाटर क्वालिटी। इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स में नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि मान लीजिए नदी बह रही है, यहाँ से एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वेस्ट वाटर आके नदी में गिर रहा है। अब इस वेस्ट वाटर में गिरने की वजह से इसमें कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को घटा देंगी, लेकिन कुछ समय के बाद नेचुरल प्रोसेस से, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे बढ़ के कुछ किलोमीटर के बाद ये रिवर वाटर जो है अपने ओरिजिनल प्रिस्टीन लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जबकि सिर्फ एक इंसिडेंस है या इसको ट्रीट आप कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर एक से ज्यादा है या ऑर्गेनिक लोड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तब ये फिर बिना किसी ट्रीटमेंट सिस्टम के संभव नहीं हो पाएगा। फिर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा आपको, जहां अलग अलग ट्रीटमेंट यूनिट्स लगाएंगे तभी इसको आप क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद एयर पोल्यूशन की थोड़ा सा, अभी हमारे पास टाइम है, वाटर पोल्यूशन के बाद एयर पोल्यूशन की बात करें, क्योंकि एयर पोल्यूशन आज की डेट का एक हॉट टॉपिक है। और जितना वाटर पोल्यूशन हमें इफेक्ट कर रहा है, उतना ही हमें एयर पोल्यूशन या कहीं इससे भी ज्यादा एयर पोल्यूशन हमें प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो पहले कहते थे कि साहब दुनिया के सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन वाले शहर जो हैं वो चाइना में हैं या यूरोप में हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं या ऑटोमोबाइल ज्यादा हैं। हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या नहीं थी ये, लेकिन 80 के दशक के बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ की आबादी बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स भी बढ़ने लगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, नई इंडस्ट्रीज लगने लगी, एयर पोल्यूशन बढ़ गया। और हमने कुछ नहीं किया इसको कंट्रोल करने के लिए, तो धीरे धीरे ये समस्या भी बढ़ती गई। अब हालत ये है कि दुनिया के जो 10 मोस्ट पोल्यूटेड शहर हैं उसमें से 8 भारत में है, और दिल्ली में सबसे बुरी स्थिति, और आसपास एनसीआर जो कहलाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, दिस इज वर्स्ट affected by air pollution nowadays. And in some other areas which are in the NCR region like Gurgaon, like Ghaziabad, like Noida and Greater Noida, and some other industrial cities of UP like Kanpur, they are badly affected by air pollution. उसके अलावा हमारे छोटे शहर भी, अब बी और सी क्लास सिटीज भी एयर पोल्यूशन उसमें काफी बढ़ गया है। तो सर्दी के मौसम में जो नवंबर का महीना आता है, जब पोल्यूशन का लेवल काफी बढ़ा हुआ हमें नजर आता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पोल्यूशन पूरे साल रहता है। ऐसा नहीं है कि नवंबर या दिसंबर में या सर्दी में ही पोल्यूशन बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन इज देयर राउंड द ईयर, लेकिन उस समय हमें ज्यादा विजिबल होता है, ज्यादा हमारे पर असर डालता है। ऐसा क्यों है उसकी वजह भी बताऊंगा आपको। तो एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या है, अब हमारे बिल्डिंग्स के अंदर, जैसे हमारे घर हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स या स्कूल्स हैं हमारे जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पेशेंट्स का इलाज होता है, उन बिल्डिंग्स में भी अब एयर पोल्यूशन या ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स नजर आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। इसलिए अब एक नया टॉपिक डिस्कशन का डेवलप हो रहा है, इंडोर एयर पोल्यूशन। तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम
That means that the inside portion of our buildings are not even protected by air pollution. तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन थी उसी तरह एयर पोल्यूशन की भी डेफिनेशन है। अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें, किसी भी तरह का कंटामिनेंट, किसी भी तरह की इम्प्योरिटी हवा में आके जुड़ जाए इस तरीके से कि वो इंसानों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए नुकसानदेह हो, या एयर का जो नेचुरल कंसंट्रेशन है वो किसी वजह से बदल जाए, ये दोनों ही चीजें जो है वो एयर पोल्यूशन कहलाएंगे। जैसे आप सब जानते हैं एयर में तकरीबन 78 to 79% नाइट्रोजन गैस होती है और 20 से 21% ऑक्सीजन है, जो कि ये रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। और इस रेस्पिरेशन के बिना कोई भी लिविंग बीइंग सरवाइव नहीं कर सकता है। उसके अलावा और दूसरी ट्रेस गैसेस भी हैं और हर ट्रेस गैस की भी एक सिग्निफिकेंस है, एक इम्पोर्टेंस है। गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने, नेचर ने कोई भी चीज जो है वो बेमकसद नहीं बनाई है, हर चीज बामकसद है। एवरीथिंग इज अ यूटिलिटी। द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इन द एयर, the trace gases like krypton, xenon and argon which are present in the air, every single gas, no matter how trace quantity it may be present in air, it is having a role to play. उससे हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा वो अभी आपको बताएं। तो एयर पोल्यूशन के सोर्सेज जो हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन बीइंग्स जो इंसान कॉज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो नेचुरल सोर्स क्या हो सकते हैं? जैसे आप सुनते हैं जंगल में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर्स, ज्वालामुखी फट गया, वॉल्केनिक इरप्शन है। स्प्रिंग सीजन में फूलों से जो है वो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं जो हवा में फैल जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब नेचुरल सोर्सेज तो हमेशा से मौजूद है, हजारों सालों से, जब से पृथ्वी बनी है। ये हमारे लिए समस्या नहीं है। ये जो एयर प्योरिफिकेशन का नेचुरल सिस्टम है वो इसको टेक केयर कर लेता है और ये हमारे लिए हेल्थ इश्यू कॉज नहीं करता। हमारे लिए जो हेल्थ इश्यू कॉज कर रहा है वो है एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड एयर पोल्यूशन। और इसके तीन बेसिक सोर्सेज हैं। एक तो इंडस्ट्रीज से होने वाला एयर पोल्यूशन, दूसरा ऑटोमोबाइल्स या गाड़ियों से, जिसमें हम पेट्रोल और डीजल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कंबशन से होने वाला एयर पोल्यूशन, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हम कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं थर्मल पावर प्लांट में, जहां कोयले को हम बर्न कर रहे हैं और इससे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड and other gases being released into it. These are the three basic sources of man-made air pollution, which is a cause of concern for all of us. क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा मैं नहीं बात करूंगा, ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन दी है कि सब पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट वो हैं जो डायरेक्टली हवा में रिलीज हो रहे हैं। सेकेंडरी वो हैं जो आपस में एयर में रिएक्ट करके कोई तीसरा डेडली कंपाउंड बना लें, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी। केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एयर पॉल्यूटेंट्स। क्लासिफिकेशन द बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड है, सॉलिड्स हैं, पार्टिकुलेट्स या पार्टिकल्स हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द एयर। तो यहाँ देखिए तीन ये पीएम का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर एंड पीएम प्रीकर्सर का मतलब है जो पार्टिकुलेट मैटर लाने के लिए जिम्मेदार हैं चीजें। तो मोबाइल सोर्सेज का मतलब जो चल रहे हैं, जैसे गाड़ियां हैं उससे निकलने वाला धुआं। स्टेशनरी सोर्सेज का मतलब थर्मल पावर प्लांट या इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज, उनकी चिमनी से धुआं निकल रहा है। एरिया सोर्सेज का मतलब जैसे ड्राई क्लीनर्स सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं जो वेपराइज हो जाता है, या पेट्रोल को अगर आप खोल के रखते हैं, आप देखते हैं वेपर बन के उड़ जाता है। इस टाइप के वेपर्स जो हैं वो एयर में जाते हैं, तो ये भी एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। नेचुरल सोर्सेज भी हैं लेकिन ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वो चीज आ गई जो हमने कहा कि सर्दी के मौसम में दिल्ली में एयर पोल्यूशन ज्यादा नजर क्यों आता है, क्या उसकी रीजन है? तो ये होता है इन्वर्जन की वजह से। सर्दी में एक इन्वर्जन का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जमीन से थोड़ी ऊपर एक ठंडी हवा की एक लेयर बन जाती है। नीचे गर्म होती है हवा, ऊपर ठंडी होती है।
और इस ठंडी हवा की वजह से या ये ठंडी लेयर जो है वो गर्म हवा की लेयर को ऊपर उठने से रोकती है। तो जब ऊपर उठने से रोकती है तो जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, चाहे वो गाड़ियों से हो, ये सारा पोल्यूशन हो रहा है जमीन की सतह के पास। तो ये डिस्पर्शन ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स आर नॉट बीइंग अलाउड बाय दिस वार्म लेयर, और ये सारे पॉल्यूटेंट जमीन के सतह के पास ही कंसंट्रेट कर जाते हैं, तो एयर पोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी प्रॉब्लम भी होती है और आप देखते हैं कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज कॉल्ड द लेयर ऑफ इन्वर्जन। लेकिन पोल्यूशन पूरे साल रहता है। अब जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकालते हैं कि साहब स्कूल बंद कर दीजिए, या दिल्ली में जैसे बताया गया ऑड और इवन फॉर्मूला लागू किया गया, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चला दीजिए, एक दिन इवन नंबर की गाड़ी। दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म मेजर्स। इससे जो है एयर पोल्यूशन की समस्या पर निदान आप नहीं ले पा सकते। स्कूल आप कितने दिन बंद करेंगे? ऑड इवन कार का भी लोगों ने इलाज निकाल लिया, 2 गाड़ियां खरीद ली, एक ऑड नंबर की, एक इवन नंबर की, या लेडीज को अलाउ कर दिया तो लेडीज ही गाड़ी चलाने लगी। सो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। You have to find the long-term solutions, and the long-term solutions cannot be found out overnight. First, you have to create awareness. Then you need the participation of the government, the NGOs, and public participation is very, very important. That we have to work day and night to decrease the carbon emissions. To do, जैसे for example, अगर थर्मल पावर प्लांट से पोल्यूशन हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाया जा रहा है, उससे हो रहा है, तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है, सोलर एनर्जी के ऊपर ज्यादा, इस तरह विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी वगैरह वगैरह, हाइड्रो पावर. सो ऑल दीज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी are to be preferred, and we have to produce more and more electricity by these methods so that the pollution of the air by thermal power plants can be stopped. इसी तरह इंडस्ट्रीज जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको भी हम रोकने की टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस व्हिच कैन एंड आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन द इंडस्ट्रीज, starting from gravitational settling chambers to bag house filters, venturi scrubbers, wet scrubbers, to electrostatic precipitators. So some of these are small devices, some are large devices. Small devices having less cost and large devices more in cost. So depending upon the type of industry, it is decided what type of say device is going to be used to reduce the air pollution. अगर गाड़ियों में हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उसकी जगह पर दूसरे लेस पोल्यूटिंग फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीएनजी एक फ्यूल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एलपीजी का भी इस्तेमाल हो रहा है गाड़ियों को चलाने के लिए. और बायोफ्यूल या बायोडीजल का नाम आपने सुना होगा. इसमें एथेनॉल में हम कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, नेचुरल ऑयल, जैसे जेट्रोफा एक है, जेट्रोफा का बीज उगाया जाता है, झारखंड में बहुत हो रहा है, और उसको जो है क्रश करके उस ऑयल को इथेनॉल के साथ मिला के बायोडीजल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है गाड़ियों को चलाने. और अब हाइब्रिड गाड़ियों की भी बात चल रही है, जिसमें 2 तरह का फ्यूल यूज होता है. इलेक्ट्रिक कार्स को कह रहे हैं कि अगले आने वाले 10-15 सालों में इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स के साथ भी वही समस्या है. इलेक्ट्रिक कार में जाहिर है पेट्रोल डीजल तो आप नहीं जला रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली चाहिए उस इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ से पैदा होनी चाहिए. अगर आप थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उससे गाड़ी चार्ज कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं. वो तो आप नाक घुमा के पकड़ लीजिए या ऐसे पकड़ लीजिए, बात वही है, तब आप उतना ही एनवायरमेंट पोल्यूट करेंगे. So we have to find out not only engineered solutions but sustainable solutions. So that is why everybody is talking about sustainable development and finding engineered solutions to problems. So I would like to stop here since 15-14 minutes are left, and now this lecture is open for discussion. So you can ask your questions one by one. एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं. पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करें. So myself is Dr. Arshad Kumar, and I want to know the difference between water level and water table, sir. Okay. Dr. Ashutosh Kumar has asked a very good question. He's saying that
what is the difference between water level and water table? Ashutosh, you must have seen that if water is existing in any depression, just like, for example, a pond or a lake, Yes. close to atmosphere, so that water will be, its top surface will be called as the water level, because it is exposed to atmospheric pressure. But when you are taking out water from any aquifer below the surface of the earth, it is called water table, because sometimes it is at the normal atmospheric pressure, sometimes it is at the high atmospheric pressure, due to which you must have seen that at some places water is coming out of the ground with pressure. जैसे होते हैं ना झरने होते हैं, natural springs. Yes, So sir. Yes. natural springs, the water is under more than atmospheric pressure, it is coming out with pressure. So that is the difference between water table and water level. Okay. I hope Thank you, sir. ये तो सर मेरा ये प्रश्न था कि अब तक हम लोग जो पहले शुद्ध अपना पानी नाम बताइए please. मैं शुभ्रांशु शेखर सिंह, रक्षा में स्नातक अध्ययन विभाग, डिवीजन ऑफ पीजी कॉलेज गोरखपुर। सर ये था प्रश्न मेरा कि जो हम लोग शुद्ध जल की परिभाषा अब तक जानते हैं कि रंगहीन होना चाहिए, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होना चाहिए, लेकिन जो अभी जो महंगे पानी की पानी आ रही है ब्लैक वाटर के रूप में, कहा जा रहा है कि ये भी पानी जो है वो पीने के लिए ही है। ज्यादातर क्रिकेटर और बड़े बड़े लोग उसको यूज करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये किस तरीके की पानी है जो कि ब्लैक होने के बावजूद भी पीने योग्य है और वो है, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। और दूसरा सर ये जो थोड़ा के ऊपर जो जरा प्रकाश डाल देते हैं तो बेहतर होता है। शुभांशु जी, मैंने पहला क्वेश्चन तो आपका सुन लिया है, सेकंड क्वेश्चन में आवाज थोड़ी कट रही थी, नहीं सुन पाए, तो दूसरा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या? जी, रेडियो धर्मी प्रदूषण जो है सर, और विभिन्न जो नाभिकीय विस्फोटों से या फिर जो आपकी पावर प्लांट जो है उसके चलते जो प्रदूषण हो रहा है, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। जैसे चेरोनोबिल की घटना हुई तो उसमें रेडियो प्रदूषण वगैरह रहा। डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर सिंह जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है. He's asked a very good question. The first question was that the people are talking about drinking the black water that is being imported from France or other European countries, and the celebrities, some of them political leaders, some of them cricketers, some of them film stars, they are drinking that water. So he wants to know that whether this what this water is, black water, and whether it why it is so beneficial that these people are, क्योंकि इस पानी की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है. One bottle is costing about 4,000 rupees. I've come to know. So this water actually it is from a natural spring, and it is a natural you can say mineral water. अभी तक हमारे यहाँ जो मिनरल वाटर का कंसेप्ट था वो मिनरल वाटर नहीं. हमारे यहाँ जो बॉटल्स आती है अंडर डिफरेंट ट्रेड नेम, जैसे किनले, जैसे बिस्लेरी, एक्वाफिना, दीज आर ऑल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर. बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नेचुरल स्प्रिंग वाटर, एंड दैट टू द मिनरल्स, द विटामिन्स and other essential elements, they have been arranged to the level that are best suited for a ह्यूमन बींग्स. तो वो पानी को बनाने के लिए ज्यादा कॉस्ट इसीलिए आ रही है कि उस पानी में वो उस क्वांटिटी में सारे मिनरल्स, सारे विटामिन और चीजें ऐड कर रहे हैं जो कि मानव शरीर के डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा है. इसीलिए उसकी कीमत 1 लीटर पानी की 4,000 रुपए है. तो खैर वो अवेलेबल है, मैं इसकी कोई बुराई नहीं करूंगा यहाँ पर. वो अगर कोई पी रहा है तो अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो पी रहा है. लेकिन यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल मासेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंजीनियस सिस्टम्स दैट आर अडॉप्टेड टू प्रोवाइड क्लीन एंड हाइजेनिक वाटर. और भारत जैसे देश में जहाँ 70-80% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वहां पर हम ब्लैक वाटर की तो सोच ही नहीं सकते हैं. हम तो क्लीन हाइजेनिक वाटर की बात कर रहे हैं जो कि प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है और हर नागरिक का की जो है वो का हक है. दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में. तो मैंने ये बताया था आपको कि अब ग्राउंड वाटर में भी और सरफेस वाटर में भी रेडियोलॉजिकल आइसोटोप्स मौजूद हैं. अब सवाल ये कि पहले कहाँ थे, पहले क्यों नहीं थे, अब कहाँ से आ गए. तो आप सब जानते हैं कि
बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, वगैरह वगैरह। इनका अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे साइंस और रिसर्च की लैब्स हैं इंडिया में, जैसे DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम को एनरिच करने के लिए कैंसर रिसर्च और ट्रीटमेंट के दौरान, और हाई लेवल रिसर्च लैब्स में, यूनिवर्सिटीज में, यहाँ पर ये रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है। और जब ये सब्सटेंसेस अपनी हाफ लाइफ पूरी कर चुके होते हैं, तब इनको डिस्पोज ऑफ करना होता है। इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को या रेडियो धर्मी पदार्थों को हम नॉर्मल सॉलिड वेस्ट की तरह डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट में इनको ओपन छोड़ देंगे तो रेडियो एक्टिविटी रिलीज हो जाएगी और पूरा समाज, पूरी सोसाइटी और ह्यूमन बींग्स अफेक्टेड हो जाएंगे। और ये बहुत डेडली सब्सटेंसेस हैं। ये जब कोई भी ह्यूमन बींग शरीर का कोशिका इससे इफेक्ट होती है, जेनेटिक म्यूटेशन कॉज करते हैं इन द ह्यूमन सेल। जो हम सब ने देखा जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर जब एटॉमिक बॉम्ब फेंके USA ने, उसके बाद अभी बात की है चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एक्सीडेंट से रेडियोएक्टिविटी रिलीज हुई है, उसका डेटा भी अभी पूरी तरह अवेलेबल नहीं है। और अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है, उसमें यूक्रेन के बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर कब्जा कर रखा है रशिया ने। तो वहां भी कोई इंटरनेशनल मीडिया को या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को जाने नहीं दिया जा रहा है। किसी को पता नहीं है कि क्या आफ्टर इफेक्ट्स हुए हैं और कितनी रेडियोएक्टिविटी का लेवल है सॉइल में, एयर में और वाटर बॉडीज में। सो दिस आर वेरी डेंजरस। रेडियोएक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो कि नॉर्मल पोल्यूशन तो आपको दिख जाता है, लेकिन रेडियोएक्टिविटी को आप किसी भी फिजिकल सेंस से अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ना हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसे स्मेल कर सकते हैं, ना हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पर रेडियोएक्टिविटी हो पानी में या हवा में, तो आपको पता नहीं चलेगा एंड यू विल बी अफेक्टेड बाय इट। So this is a very dangerous thing, and now in the say Bureau of Indian Standards, when we are trying to ascertain the water quality of say even a groundwater or surface water, the radiological isotopes are being determined to find out the water quality, and there are certain techniques by means of which we can remove them. सर मैं डॉक्टर नाहर सिंह दयालबाग यूनिवर्सिटी से। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे DDT हुआ, सेल्फोस हुआ, ये शरीर के लिए नुकसानदेह है और लोग ढेर सारे सुसाइड भी कर रहे हैं। तो एज ए एजुकेशनिस्ट हमको पता है, लेकिन एज ए एजुकेशनिस्ट हम क्या कर सकते हैं कि इस समस्या का सॉल्यूशन निकले सर? जी जी जी, डॉक्टर नाहर सिंह जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आगरा से। कह रहे हैं कि हम सबको पता है कि DDT या दूसरे केमिकल्स जिनका नाम आपने बताया वो नुकसानदेह हैं, लेकिन एज एन एजुकेशनिस्ट, एज टीचर्स, एज मेंबर्स ऑफ टीचिंग कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए इन चीजों? तो जाहिर जो हम कर रहे हैं इस वक्त, जो हम कर रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से, वही हम कर सकते हैं, यानी कि समाज में जागरूकता फैलाना, क्रिएट अवेयरनेस। और एक टर्म यूज किया जाता है, ट्रेनिंग द ट्रेनर्स, क्योंकि टीचर्स को जो है वो समाज का एक ऐसा अंग माना गया है जो कि अच्छी बातें, अच्छी वैल्यूज समाज में आगे बढ़ाते हैं, उस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाते हैं। तो इसलिए जब हम टीचर्स इन चीजों को समझेंगे और आगे समाज में, गांव में, अपने आसपास के क्षेत्रों में पहुंचाएंगे, तो ये चेंज आएगा। चेंज, मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इन सब चीजों में चेंज लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। ये सब चीजें हमारे ऊपर असर डाल रही हैं, तो हमें हाथ से हाथ मिला के सरकार, पब्लिक पार्टिसिपेशन, गैर सरकारी संस्थाएं, सबको मिलकर काम करना इस क्षेत्र में और पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सर मैं संजय कुमार, और अपने केमिस्ट्री प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर करना है, या अपने लेवल पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने घर में लगा सकते हैं। मैंने खुद अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है पानी को कंजर्व करने के लिए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स, या पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करना बंद करिए। पॉलिथीन बैग की जगह अपने घर से जब सामान लेने जाएं, कपड़े का थैला या जूट का थैला लेके जाएं, ताकि पर्यावरण में ये नुकसान ना पहुंचे। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। ये सब छोटे छोटे कदम हम ले सकते हैं, जो कि एक बड़ा बदलाव फिर लार्ज लेवल पर आएगा समाज में। तो हमेशा शुरुआत खुद से होती है और फिर आगे बढ़ती है, समाज में आती है वो। ओके, थैंक यू सर। सर मैं संजय कुमार, केमिस्ट्री प्रोफेसर हूँ JP यूनिवर्सिटी में। सर मेरा एक क्वेश्चन है, यह है कि टेक्निकली क्या हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं पानी में बाय टेक्नोलॉजी? हाँ जी जी, संजय कुमार जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि टेक्निकली क्या कोई तरीका ऐसा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को हम बढ़ा सकते हैं।
अब समस्या ये है कि जैसे ट्रीटमेंट प्लांट में जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं जहां हम एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को कम करने के लिए, वहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई और इतने कम क्वांटिटी में पानी में मौजूद होती है तो ये का सिस्टम काम करेगा ही नहीं। तो उसके लिए हम कुछ आर्टिफिशियल मीन से ऑक्सीजन उसमें बढ़ाते हैं। जैसे एक तरीका है बाय यूजिंग सरफेस एरेटर्स। सरफेस एरेटर्स और मैकेनिकल डिवाइसेज, जैसे आपका पंखा होता है, छत का पंखा, उसको समझ लीजिए उसमें मोटर ऊपर होता है, इसमें मोटर जो है लगा होता है और ये पानी की सरफेस सतह पर फ्लोट करता है और नीचे ब्लेड्स होते हैं। तो जब आप इसको स्विच ऑन करते हैं, ब्लेड्स रोटेट करते हैं और पानी की सतह को एजिटेट करते हैं। So by this method we increase the surface area of the oxygen transfer that is taking place by diffusion. In this way the dissolved oxygen enters into the system in a large quantity. Similarly एक और सिस्टम भी है डिफ्यूजर्स। तो कंप्रेस डिफ्यूजिंग सिस्टम के थ्रू भी हम जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई नदी का पानी है, वो उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है, या तालाब का पानी है, वहां पर आप अगर सरफेस एरेटर या डिफ्यूजर के जरिए बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। कर तो सकेंगे लेकिन अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, तो इसलिए वहां संभव नहीं है। तो सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट में हम ये आर्टिफिशियल मीन्स, मैकेनिकल मीन्स का यूज करते हैं। Okay, myself, Dr. Vijay Kumar from Tilkamaji, Bharpur University. Yes. My question is, how much RO water is safe for us? Very good. तो विजय कुमार जी ने बड़ा अच्छा asked a very good question that when we are drinking RO water, RO has become a status symbol now. Every person is installing an RO system. If somebody has installed Euroca Forbes, I will install Kent. His system or her system is costing 10,000 rupees. I will purchase a 15,000 rupees. I have said Aquafresh. Everybody of us has something or the other. I myself has Kent. So the problem is that all the water that we are taking from the ground does not require the RO. RO means reverse osmosis, and this reverse osmosis uses a semi-permeable membrane, for example cellulose acetate, to remove excess total dissolved solids or minerals from water which are harmful for the human body. But if these total dissolved solids are up to a certain level, say maybe up to 250 milligrams per liter, these are not harmful for human body at all. तो अगर आपके पानी में if your water is having TDS up to 250, अब previously we are taking out water from level 1, there the TDS level was high. Now we are taking out water from level 2, say from 250 feet. So in my house, the groundwater is having TDS level equal to 250. So what I have done is that I have asked the person of that RO to bypass through the RO membrane. I am not passing the water through the RO membrane, and I am using the other units that are there in the system. That is, carbon adsorption filter is there, which is removing the large size impurities. Then we have a say UV system, ultraviolet, which is responsible for killing the bacteria or the pathogens. But if your water is having say dissolved oxygen up to 250 milligram per liter, there is no need to use a RO membrane, because RO is capable of removing arsenic up to a certain limit, not completely. 30 to 40% it can remove. Okay. The problem with the RO is if it reduces the TDS level below say 100 milligrams per liter, it results in lot of negative effects on our body, especially for the ladies. The bones, especially after say menopause, in the 50 years plus age, the ladies are having a lot of decalcification from their bones. तो होता क्या है कि वो ऐसा पानी आप पी रहे हैं, आपकी हड्डियां वीक हो गई और थोड़ा सा गिरे, फ्रैक्चर हो जाता है फॉर, then muscular weakness is there. So the minimum TDS level should be 100 milligrams per liter, should not be less than that at all. You should keep that in mind. Okay, so now the time is over. I think if you have more questions, you can write in the chat box, and I will certainly answer to your queries. Now I want to thank the UGC Academic Staff College, HRDC, for giving me an opportunity to all of you. Thank you, sir. And thank all
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा लगा धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सर sir. थैंक यू सर Thank you, sir. धन्यवाद सर। Thank you, sir. गलत तो सर